Good afternoon, students. Welcome to online classes. This is Kiran Sir's voice from Vassalabai Vanwadi School of Scholars. We are discussing the lesson, The Silver Lining. In the previous lesson, we discussed that Mr. David also deaf and dumb. So that's why they are playing in the garden and came toward Mr. Bhandari and Mrs. Bhandari and also the Chaman Nehal. So that's why that they realized that he was deaf and dumb also. Now see further. His strange ambiguous silence. Ambiguous means meaning more than one. द्विअर्थी जो जिसे बोलते हैं वो. His sudden rush for the girl on reading the note. All became instantly clear to us. So that's why the Chaman Nehal said that regarding the Mr. David, his strange and ambiguous silence and actually his hidden rush for the girl having on his face all became instantly clear to us. जितने भी सारे doubts थे वो सारे clear हो चुके थे. It took us time to digest the news. जो भी न्यूज़ दिए थे अब वो पचने लायक ही थी. And then both parents broke into incoherent statement of profuse apologies. Incoherence means without logical statement, बिना सोचे ही बोलना. Of profuse means extreme abundance, बहुत सारा. Apologize that they had not noticed it earlier. So regarding that, Chaman Nehal said that parents not having the idea regarding the Mr. David, so that's why incoherent statements of profuse apologize. जितने सारे भी विदाउट सोचे वाले शब्द थे वो सारे सॉरी के माफिक वो डेविड को बोले दैट दे हैड नो नोटिस इट अर्लियर. इसके पहले उसको नोटिस क्यों नहीं किया, इसके बारे में वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे. इमेजिनिंग द टाइप ऑफ मैन दे वेर टॉकिंग टू, they spoke in half sentence and tried to convey the rest through gestures. So according to that, Mr. and Mrs. Bhandari talking so much regarding that child love, and they want to speak to the Mr. David, but David can't understand because he is also deaf and dumb. So that's why ट्राई टू कन्वे द रेस्ट थ्रू गेस्चर. जितना सारा प्रयास करना था मिस्टर एंड मिसेस भंडारी अपने गेस्चर के तरीके से डेविड को समझाने का प्रयास कर रहे थे. बट द यंग मैन हैड नॉट द स्लाइटेस्ट डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंड देम. उनकी जो बातें हैं पूरी की पूरी बातें वो समझ नहीं पा रहे थे. ही अपियर टू रीड देयर लिप्स ओनली, ही डू द वन वर्क. Mr. David seeing on their lips, because if any person having a deaf and dumb, if other person is talking with that person, deaf and dumb personality people only read the lips of the other person. He gracefully acknowledged their warmth and neither nodded or shook his head in reply. ही ग्रेसफुली एक्नॉलेज देयर वार्मथ. उनका जो हॉटनेस था मतलब कि सेंसेशन वाला हीट थी, एनर्जी थी वो. एंड नाइदर नोडेड और शुक हिज हेड इन रिप्लाई. क्योंकि जितना सारा मिस्टर एंड मिसेस भंडारी बोल रहे थे उनको कुछ भी रिप्लाई मिस्टर डेविड की तरफ से नहीं मिल रहा था. फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी आंसर ही यूज पेन एंड पेपर. सो दैट्स वाई Mr. and Mrs. Bhandari giving so much thought regarding that situation to the Mr. David, but David can't understand. So that's why they think about the giving in a writing. So that's why he used pen and paper. The next day, Mrs. Bhandari was full of news. उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी पूछने वाली डेविड से. She talked as she had never talked before. इतने ज़्यादा बोली कि वो पहले किसी से इतनी बात नहीं की. एंड एक्चुअली ऐसे होना ही चाहिए था बिकॉज मिसेस भंडारी बिकम अ वेरी हैप्पी.
She mentioned the stranger and the plans for the betterment of Pramodini he had outlined to her and her husband. So that's why he want to talk about the outlines कि उसके बेटरमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर दोनों मिस्टर एंड मिसेस भंडारी आउटलाइन कर कर बेटरमेंट उसके बेटरमेंट के लिए प्लान करने का प्रयास कर रहे थे, मतलब कि प्लान कर रहे थे. देयर वेर स्कूल फॉर सच पीपल ही टोल्ड देम थ्रू दो दे वेयर बिहाइंड मोस्ट पीपल मीन्स. एक्चुअली मिस्टर डेविड गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट देयर वेयर स्कूल फॉर द सच पीपल. ऐसे लोगों के डेविड ने अपने गेस्चर के तरीके से पेन और पेपर के तरीके से बोला कि ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर स्कूल्स होती है. दो दे वेयर बिहाइंड द मोस्ट पीपल मीन्स ही हैड हिमसेल्फ बीन एजुकेटेड इन वन सच इंस्टीट्यूशन अब्रॉड. ऐसे ही अब्रॉड यानी फॉरेन, ऐसे ही एक स्कूल में वो भी पढ़ाता था पर विदेश में. एंड हैड नाउ रिटर्न टू इंडिया टू रेंडर द सेम यूजफुल सर्विस टू अदर्स. और ऐसी ही सर्विस देने के लिए डेफ एंड डम्ब पीपल के लिए स्कूल सेटअप करने के लिए वो विदेश छोड़कर इंडिया आया था. बाय स्टार्टिंग अ स्कूल हियर शी almost broke down with gratitude when she said that he had agreed to accept Pramodini as his first pupil. So according to that, Mr. David want to open the school for the deaf and dumb people. So Mr. and Mrs. Bhandari gave the permission to admission Pramodini to the school, that school. एंड दैट्स वाई डेविड सेड दिस इज़ माई द फर्स्ट पुपिल. अगर आप देना चाहते हो तो मुझे प्रमोदिनी को सौंप दो कि मैं उसे अच्छे से अच्छे कन्वर्सेशन के तरीके मैं उसको बता दूंगा. तो दैट्स वाई मिस्टर एंड मिसेस भंडारी रेडी टू गिव प्रमोदिनी हैंड ओवर टू द मिस्टर डेविड. ही हैड एम्फेटिकली मीन्स क्लियर विथ क्वेश्चंस. कोई भी क्वेश्चंस नहीं हो, विदाउट डाउट. दिस इज कॉल्ड emphatically. He had emphatically states that the girl could in course of time live almost as normal a life as any one of us who had the powers of hearing and speech. After introducing that school, after admission that school, the Pramodini could having the powers of hearing and speech. उस स्कूल में पढ़ने के बाद उसको सुनने की कैपेसिटी पावर आ सकती है और बोलने की भी पावर आ सकती है, ऐसा डेविड ने उसको कहा. सो दैट्स वाई द मिस्टर एंड मिसेस भंडारी एग्री टू गिव प्रमोदिनी टू द मिस्टर डेविड. मिसेस भंडारी लव लाइक अ चेयरफुल गर्ल. एक छोटी लड़की जैसी वो बहुत देर तक और हंसी. She gave us an extra helping of jam and butter and honey at the table. And actually, Mrs. Bhandari become a very happy, very happy. So that's why on that table, खाने के टेबल पे एक्स्ट्रा जाम और बटर वो टेबल पे मिस्टर डेविड के लिए परोसा गया था. She looked the happiest woman in the world. और दुनिया की सबसे हैप्पी वुमन वो उस दिन तो फील हो रही थी. एंड एक्चुअली ऐसा तो होना ही चाहिए बिकॉज उसकी लड़की के लिए डेविड एक देवता बनकर आया था. सो दैट्स वाई मिसेस भंडारी बिकम अ वेरी हैप्पी एंड इन द वर्ल्ड आल्सो. अगर कोई लेडी को अपने बच्चे के लिए ऐसा कोई देवदूत मिलता है तो वो खुशी से पागल हो जाती है. लाइक दैट शी बिकम द क्रेजीनेस ऑफ अ हैप्पीएस्ट. ओके स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट द लेसन. Thank you. Have a nice day.